کون سے حق کی بات کر رہی ہو تم؟ جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں مرنے والی ہو جاتی ہو تم، جان اٹک جاتی ہے تمہاری، سانس تک روک لیتی ہو تم۔ اس لیے اب بس، اب نہیں آؤں گا تمہارے قریب، شاہویز نے اپنا رخ پھیرتے کہا۔ پلیز شاہ، ایسے تو نہ کہیں، آپ جانتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ آنسو روکتے بولی۔ بس کر دو یار، شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، اور ان 6 ماہ میں مر کے بھی 6 دفعہ نہیں آیا تمہارے پاس۔ اب تک مجھے مکمل آسودگی سے تم نے شنایا جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے صبر کا بند توڑ دوں۔ وہ پھر سے رخ پلٹتے کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ پولیس والا تھا، ایک جنونی پولیس والا جس سے مجرم پناہ مانگتے تھے، اور اس کی اپنی بیوی سے اب وہ پناہ مانگنے لگا تھا جو اس کو اپنے قریب تک بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ اور اب شاہویز انصاری کے صبر کا بند ٹوٹ رہا تھا۔ شنایا معصوم تھی، اس کی عمر صرف 18 سال اور کچھ ماہ تھی، لیکن یہ دور انٹرنیٹ کا دور تھا۔ اب تو 10 سال کا بچہ بھی سب سمجھتا تھا، تو یہ 18 سال کی ہو کے شوہر کی ضروریات کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ شاور لیتے ہوئے بھی وہ مسلسل اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا، جبکہ وہ باہر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کتنی کوشش تو کر رہی تھی کہ وہ شاہویز کے قریب جائے، اسے خوش کرے، لیکن اپنے ڈر پہ قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ لپ قسم سے بات آگے بڑھتی، وہ اس کی گردن کو چھوتا تو وہ بری طرح پینک ہو جاتی، اور اس قدر روتی کہ شاہویز اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ کے ساری رات سگریٹ پھونکتا رہتا۔ ابھی بھی وہ رو رہی تھی۔ ان 6 ماہ میں وہ کتنا خود کو سمجھا چکی تھی، ہر بار کوشش کرتی کہ وہ اپنے اس ڈر پر قابو پا لے اور شاہویز کو اس کا حق دے دے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی خوف اس کے آڑے آ جاتا، اور وہ اس کو ایسے مقام پر لا کر چھوڑتی جس پر وہ مرنے کے قریب ہوتا، لیکن اس کو تکلیف نہیں دے پاتا تھا۔ شاور لیتا وہ باہر آیا، جہاں وہ بیٹھی اب آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ وہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی چڑچڑا ہو رہا تھا۔ شنایا فوراً سے اٹھ بیٹھی اور اپنے آنسو پونچھتے شاہویز کے قریب آئی۔ آئی ایم سوری، سو سو کرتی وہ اپنی سرخ اور سفید رنگت کو بالکل ٹماٹر کی طرح لال کر چکی تھی۔ شاہویز گہرا سانس بھرتا اپنا رخ پھیر گیا اور پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ میں ایک اچھی بیوی نہیں ہوں، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ کہنے کی ہمت کہاں پڑتی تھی، کہاں وہ 18 سال کی نازک سی چڑیا اور کہاں وہ 6 فٹ سے نکلتا دراز قد 29 سال کا باڈی بلڈر جسامت والا یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا جوان مرد تھا۔ اس کی جانب شنایا تو نظر بھر کے دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اب پلیز رونا بند کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، جاؤ ناشتہ لگاؤ۔ وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں بولتا اب اپنی بیلٹ لگا رہا تھا۔ شنایا مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ شنایا اب تم واقعی مجھے ٹیز کر رہی ہو، جانتی ہو غلطی بھی تمہاری ہے اور رو کے مجھے سزا بھی تم دیتی ہو۔ وہ زچ ہوتے بولا۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں، وہ بمشکل بولی۔ شاہویز کا جی چاہا اس سے کہہ دے کہ میرے ناراض ہونے سے تمہیں کون سا فرق پڑنا ہے، لیکن اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں لال ڈورے دیکھتا وہ خود پہ ضبط کر گیا۔ نہیں ہوں ناراض، جاؤ شاباش ناشتہ ریڈی کرو، ورنہ سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ اب کی بار بہت نرمی سے بولا تو شنایا کے چہرے پر اسی لمحے مسکان آ سجے گی۔ میں بس 2 منٹ میں تیار کرتی ہوں، آپ ناشتہ کر کے جائیے گا، وہ فٹ سے کہتی باہر بھاگی، جبکہ شاہویز دکھ بھری آہ بھر کے رہ گیا۔ کاش اسی طرح تم بھاگتی ہوئی میرے پاس بھی آؤ اور کہو آج۔ وہ پھر سے وہی سوچے پالنے لگا۔ بس کر دے ایس پی شاہویز انصاری، ورنہ اپنی سوچوں میں گھر کے ایک دن تو نے دنیا سے ہی کٹ جانا ہے۔ وہ خود پہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتا باہر آیا، جہاں کچن سے اس کی شنایا کی ہنسنے کی مسکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً اپنی دل عزیز نند اشل کے ساتھ محو گفتگو تھی، اور دونوں مل کر ناشتہ ریڈی کر رہی تھیں۔ السلام علیکم امی جان، وہ راشدہ بیگم سے سلام کرتا ان کے پاس ڈائننگ ٹیبل پر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج تو میرا شہزادہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ میرے بچے کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ انہوں نے اس کی بلائیں لی، اور ہر ماں کو اپنا بیٹا ایسے ہی لگتا ہے، بس بیٹیاں ہی نہیں کچھ لگتی۔ باہر آتے ہوئے اشل نے اپنی ماں کا جملہ اچک لیا تو شاہویز نے مسکراتے ہوئے بہن کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم تینوں ہی میری آنکھ کا تارا ہو، تم تینوں کے ہونے سے ہی میرے گھر میں رونق ہے، جان بستی ہے تم تینوں میں میری۔ راشدہ بیگم نے محبت سے پاس کھڑی شنایا کا ہاتھ تھام لیا تو شنایا بھی مسکراتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ تائی جان، اس گھر کی رونقیں آپ کے دم سے ہیں، آپ ہماری بڑی ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ ہمارے سر پہ قائم رکھے، آمین۔ 18 سال کی عمر میں اس کی اتنی سمجھدار باتیں سنتا ہوا شاہویز اسے گھوری سے نواز گیا۔
सब कुछ पता था उसको सिवाय एक काम के। वो फिर से खुद को ट्रैक से उतरता महसूस करते हुए अपनी माँ की जानिब मुतवज्जे हुआ। अम्मी जान, आज वापसी पे थोड़ा देर हो जाएगी, कुछ अहम केसेस हैं, उन पर काम करना है। लेकिन बेटा, आज तो तुम्हारी खाला आ रही हैं और उन्होंने स्पेशल कहा था उन्हें शाहवेज से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। राशिदा बेगम ने याद आने पर शाहवेज को कहा, चले ठीक है अम्मी जान, वो कौन सा आज ही वापस चली जाएंगी, कुछ दिन रुकेंगी ना। नाश्ता करते हुए वो अपनी जगह से उठा था, जबकि शनाया उसी टाइम भागते हुए कमरे में गई और उसका वॉलेट, मोबाइल और कीज उठाए हुए बाहर आई। शनाया से चीजें लेते हुए उसने सरसरी सा कहते माँ को अल्लाह हाफिज कहा। अब शनाया को देखा जिसकी नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। हाँ, ये भी है, तुम्हारी खाला कुछ दिन शायद यहीं रहें। चलो ठीक है, फिर भी बेटा जल्दी आने की कोशिश करना। पता है ना, घर में जवान बहन, जवान बीवी है और तुम एक ही मर्द हो इस घर में, इस घर के रखवाले। राशिदा बेगम फिर भी उसे नसीहत करना ना भूली और वो इस बात में सर हिलाता हुआ गेट की जानिब बढ़ गया। शनाया भी उसके पीछे ही लपकी। शाहवेज, आप ये कीज तो लेकर ही नहीं गए? वो जल्दी से बोली। हाँ जानता हूँ, जानबूझ के छोड़कर आया था ताकि तुम आओ मुझे देने। आगे बढ़कर उसके हाथ से कीज लेते हुए उसकी नाक के साथ अपनी नाक रब की। उसकी खुशबू को इनहेल करता वो पीछे हटता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया, जबकि उसी पल शनाया ने तो अपनी सांस ही रोक ली। वो जा चुका था, अपनी खुशबू उसके इर्द गिर्द छोड़ के आ था। शनाया मुस्कुराते हुए वापस अंदर आई। उसे लग रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है, एक अच्छा घर, प्यार करने वाला शोहर, प्यार करने वाले रिश्ते। खुद पर रश्क करती, लेकिन ये नहीं जानती थी कि बहुत जल्द यही सब कुछ उसके लिए आजमाइश बनने वाला है। वो इन्हीं सब चीजों से आजमाए जाने वाली थी, क्योंकि अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और लेके भी। अब देखना यह था कि शनाया इस आजमाइश पर पूरा उतरती है या नहीं। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा तो एक केस के सिलसिले में उसे शहर से बाहर जाना पड़ गया और फिर तकरीबन उसका सारा दिन वहीं गुजर गया। घर रात को काफी लेट पहुंचा और जानता था कि राशिदा बेगम उससे नाराज होंगी, लेकिन वो भी क्या करता, उसकी भी मजबूरी थी। वो एक एसपी अफसर था, उस पर सिर्फ अपने थाने का नहीं और थानों की भी जिम्मेदारियां थी। टीवी लाउंज से निकलते हुए उसकी निगाह सोफे पर सोई हुई शनाया पर जा ठहरी। यकीनन उसका इंतजार करते हुए ही सोई थी। उसके हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ था और एलईडी ऑन थी। वहां पर कार्टून देखकर शाहवेज गहरा सांस भर के रह गया। वो चाहता था कि उसकी बीवी बड़ी हो जाए, लेकिन उसकी बीवी अभी भी कार्टून्स देखती थी। कैसे बड़ी हो सकती थी? उसके हाथ से रिमोट टेबल पर रखता हुआ वो उसे देखे चला गया। 14वीं के चांद की तरह उसका चेहरा दमक रहा था। एक अलूही सी चमक उसके चेहरे पर थी। उसे देखकर हमेशा ही शाहवेज मस्मराइज हो जाता। कुछ खास था उसके चेहरे पर, वो खुद भी नहीं जानता था। उसके बालों की आई लटों को उसके चेहरे से पीछे करता बेख्तियार होते उसे देखे जा रहा था कि वो हल्का सा कसमसाई और अपनी आंखें खोल दी। अरे शाहवेज, आप आ गए? मुंदी मुंदी आंखों से शाहवेज की जानिब देखा। उसकी आंखें नींद से भरी देख शाहवेज का दिल डूब के उभरा। वो दिल ही दिल में बरमला तस्लीम कर रहा था कि उसकी बीवी बेइंतहा खूबसूरत है, मासूम है, पाकीज़ा है। आपके लिए खाना लगा दूं? वो बमुश्किल आंखें खोलते हुए शाहवेज से बोली। शाहवेज ने एक झटके से उसे अपनी बाहों में भरा। खाना खा के आया हूं, सिर्फ सोना है तुम्हें अपने सीने में भेंचते हुए। वो उसे लिए रूम में आया। शाहवेज, पक्की बात है ना, सोना ही है ना? हमेशा की तरह वो तसल्ली कर रही थी। शाहवेज उसकी बात पर मुस्कुराया। मेरी जान, सोना ही है। अपनी बीवी की नाज़गी को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं हक करके सोना चाहता हूँ। उसे बिस्तर पर लेटाते, उसको माथे पर बोसा देते वो बाथरूम का रुख कर गया, जबकि शनाया की नीली कांच सी आंखें मुस्कुरा दी जब तक शाहवेज इजी ड्रेस पहनकर वापस आया। शनाया गहरी नींद में जा चुकी थी। शाहवेज तमाम लाइट्स ऑफ करते हुए धीरे से उसके पास लेटता, अपने और उसके ऊपर कंफर्टर उड़ाता, उसकी पुश्त को अपने सीने के साथ जोड़ गया। उसका पूरा जिस्म शरारों से भर गया था। उसकी बैक गर्दन पर अपनी नाक रब करते वो अपनी आंखें मौन गया। वो हिम्मत वाला मर्द था जो अपने जज्बात पर काबू पाना जानता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की खातिर, जो अभी उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती थी। डरती थी, उसे कुछ वक्त चाहिए था। वो जानता था एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो खुद उसके पास आएगी। सुबह सवेरे खाला जाहिदा से भी मुलाकात हो गई और उनकी बेटी शाजिया से भी, जिसके साथ वो अंसारी हाउस आई थी। शाहवेज पुत्र, मेरी नंद का बेटा बहुत ही आवारा है।
वो खुद तो आकर बैठ गई है भाई के घर, ऊपर से बेटे को भी ले आई है। आते जाते मेरी शाजी पर गंदी नजर रखता है और एक दिन तो हाथ तक पकड़ लिया। बोलना शाजी, बता शाहवेज को, पुलिस वाला है, सीधा करके रख देगा उस कामी को। खाला जाहिदा ने शाजिया को टहोका मारा तो वो मुंह बसोर गई। खाला आप बात करें, मैं सुन रहा हूं। शनाया के हाथ से चाय का कप थामते वो संजीदगी से खाला को देखते बोला, अरे बेटा, लड़की का बाप सर पे ना हो तो बहुत ही मसले हो जाते हैं, और जब सौतेला बाप हो तो ये मसले तो और भी बढ़ जाते हैं। खाला जाहिदा की हामिद साहब से दूसरी शादी थी, इसलिए भी वो एहतियात बरतती थी, और बेटी उनके पहले शौहर में से थी। सभी उनके हालात से बखूबी वाकिफ थे। बस बेटा क्या बताऊं, इज्जत बची रहे इसी खातिर मजबूरन शाजी को लेके मुझे यहाँ आना पड़ा। कितने दिनों के लिए आई है जाहिदा वो? राशिदा बेगम ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। क्या पता आपा, आती है तो डेरा ही जमा कर बैठ जाती है। हर बार अकेली आती थी, इस बार अपने आवारा बेटे को भी साथ ले आई। जाहिदा खाला ने ठंडी आह भरी। आप फिक्र न करें, मैं देखता हूं क्या हो सकता है, बाकी ये घर आपका भी है, जितने दिन चाहें यहाँ रहें। शाहवेज ने मोहब्बत से खाला को देखते कहा और उठ खड़ा हुआ। शनाया हमेशा की तरह भागते हुए उसकी सारी चीजें ले आई। अरे बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी जिंदगी में जल्दी से एक नन्ना फूल खिला दे। मेरी आपा भी अपने आंगन के फूल को देख देख जिए। क्यों आपा? जाहिदा खाला ने बहुत मोहब्बत से दुआ दी। आमीन आमीन। राशिदा बेगम उनकी दुआ पर दिल से कहती मुस्कुराई, जबकि एक पल को शाहवेज और शनाया दोनों की निगाहों का जबरदस्त तसादुम हुआ। लेकिन शाहवेज बहुत संजीदगी से बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। शनाया भी सर झुकाए उसके पीछे ही गई। शाजी को उनके अंदाज थोड़े अलग अलग से लगे, लेकिन वो इग्नोर कर गई। आपकी कीज? हमेशा की तरह वो कीज उसके सामने करते बोली तो वो पलटा। जानता हूं तुम्हारे पास है। वो कीज उसके हाथ से लेता उसकी नाक के साथ नाक रब करते गाड़ी की जानिब बढ़ गया। शनाया के चेहरे को एक दिलकश मुस्कान ने छुआ। यही वो लम्हा होता था जिसमें वो जीती थी। ये लम्हा सिर्फ उसका था, शाहवेज की तरफ से रोज का ये तोहफा जिस पर वो अपना हक समझती थी, और अब आदत सी हो गई थी, और आदतें तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। घर में 2 लोगों का इजाफा हो गया था, जिस वजह से घर का माहौल थोड़ा मुतासिर हुआ। अब इशल और शनाया के बीच शाजी भी हुआ करती थी। इशल तो उसकी मौजूदगी की ज्यादा परवाह नहीं करती थी, लेकिन शनाया को उसका फजूल में फ्रैंक होना बहुत बुरा लगता था। शाजी आपी, ये इशल का है। केक का एक पीस उठाते वो मुंह में रखने लगी कि शनाया ने उसे टोक दिया। उस वक्त वो तीनों टीवी पे कोई सेलिब्रिटी शो देख रही थी कि इशल कोई कॉल आने पर उठकर बाहर गई थी। शाजी को केक बहुत पसंद था। अपना हिस्सा खा लेने के बाद अब वो इशल का हिस्सा भी उठा रही थी। अरे तो क्या हुआ, इस पर इशल का नाम तो नहीं लिखा? वो केक का बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखे बोली, अरे यार प्लीज, मुझे ये आप ही ना कहा करो, ज्यादा से ज्यादा 6 माह ही बड़ी होंगी तुमसे। शाजी ने नखुवत से कहते रिमोट से चैनल को चेंज किया। आप पूरी 3 साल बड़ी हैं मुझसे, मैं तो आपको एहतरामन आप ही बोल रही हूँ, और ये केक इशल का हिस्सा था, आपको नहीं खाना चाहिए था। शनाया ने अब की बार माथे पर बल डाले संजीदगी से कहा, यार वो और ले लेगी फ्रिज से, अब एक बात को लेकर ही ना बैठ जाओ, पता नहीं शाहवेज कैसे गुजारा करता है तुम्हारे साथ। वो बार बार चैनल चेंज करते उकताए हुए बोली। उसकी बात पर शनाया को सख्त बुरा लगा। आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आपको नहीं पता मियाँ बीवी का रिश्ता कितना प्यारा होता है, जिसमें गुजारा नहीं किया जाता, जिया जाता है, और जब आपकी शादी होगी ना तब आपको पता चलेगा। शनाया ने सादगी से एक बात कही जिसका शाजिया ने सख्त बुरा मनाया। मतलब क्या है तुम्हारी बात का? तुम मुझे शादी ना होने का ताना दे रही हो? वो तेज लहजे में बोली। शनाया एकदम बौखला गई थी। उसी लम्हे इशल भी वापस अंदर आई। पहले तुम मुझे बड़ी उम्र का ताना दे रही थी और अब शादी का। अगर मेरी उम्र निकल रही है, शादी के लायक हूं, नहीं हो रही शादी तो इसमें तुम मुझे बातें सुनाओगी। शाजी दुख से बोलते रो दी। शाजी आपी, मेरा वो मतलब नहीं था। शनाया ने सफाई देना चाही। रहने दो, जो भी मतलब था। 2 दिन ही हुए हैं अभी आए हुए, और मेरा खाना भी तुम्हें चुभ रहा है। माफ करना इशल, मैं गलती से तुम्हारे हिस्से का केक भी खा गई और मुझे इतने ताने मिले हैं। वो नाराज होती रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। शनाया मुंह देखती रह गई। क्या हो गया शनाया, तुम तो ऐसी नहीं थी। खा लिया था केक तो क्या हो गया, खाने देती, इसमें इतनी बातें क्यों सुनाई? इशल ने माथे पर बल डाले शनाया को धीमे लहजे में कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
शनाया ने सफाई देना चाही। छोड़ो यार, वो जब से आई है मैं देख रही हूं तुम्हारा अंदाज थोड़ा बदल गया है। प्लीज शनाया, किसी के लिए खुद को कभी मत चेंज करना। मेरी शनाया बहुत अच्छी है, सबसे अलग, तो ये सबसे ही अलग रहनी चाहिए। वो उसे प्यार से हाथ दबाकर कहते मुस्कुराकर जा चुकी थी, जबकि शनाया की आंखें पानियों से भर गईं। मतलब वो पहली दरार डाल चुकी थी। अपने कमरे में आई तो आंखों से आंसुओं को फौरन पहुंचा। शनाया, मेरा केक कहाँ है? शाहवेज जो लैपटॉप पे बैठा कोई केस स्टडी कर रहा था, शनाया को खाली हाथ अंदर आता देख सरसरी अंदाज में पूछने लगा। वो हफ्ते में एक बार केक बेक किया करती थी अपने हाथों से और बहुत मोहब्बत से सबको बांटती थी। सबसे ज्यादा हिस्सा वो इश्शल को दिया करती थी क्योंकि वो उसकी अजीजा जान बहन थी। वो मुझे याद नहीं रहा, मैं ले आती हूँ। शनाया ने फौरन सफाई दी और बाहर जाने लगी। रहने दो, कल खा लूंगा, तुम यहाँ आओ मेरे पास। वो उसे बाहर जाने से टोक गया। इतनी देर बाद रूम में आई थी और अब आते ही फिर बाहर जाने को पर तोलने लगी। जी पास आते बहुत अदब और प्यार से कहते वो शाहवेज के दिल के तार छेड़ के। शाहवेज ने उसकी जानिब सर उठाकर देखते अपनी नजरों का फोकस उसके नर्म और मुलायम चेहरे से उसकी नीली आंखों पर किया। मेरी प्यारी आंखों पर जुल्म क्यों किया है? लैपटॉप एक तरफ करते हुए एक झटके से शनाया को अपने करीब तर कर गया और फिर उसकी आंखों पर लब रख गया। शनाया की तो सीटी ही गुम हो गई। नहीं तो मैं तो नहीं रोई, वो आंख में कुछ चला गया था। मैं वो नींद आ रही है ना तो आंखें ऐसे लग रही हैं, मैं सोच रहा हूं। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती पल में शाहवेज का मूड खराब कर गई। एक जी चाह बैठ के दूसरी जानिब जोर से उसको पटक के रखते कि उसे सोने का मतलब समझ आ जाए, पर फिर अपनी बीवी की नासकी महसूस करता वो धीरे से उसे वापस खड़ा कर गया। सो जाओ, मुझे कुछ काम है, वो संजीदगी से कहता उठ के सोफे पर चला गया, जबकि शनाया ने झट से लाइट ऑफ करते सोने की तैयारी की। उसकी इतनी तेजी देखते शाहवेज लब भेंच गया। गहरा सांस भरते वो अपनी तवज्जो लैपटॉप पे मरकूज करने लगा, जो अब नामुमकिन सा लग रहा था। सामने कमसुन नाजुक सा वजूद उसका था, उस पर मुकम्मल हक रखता था। उसे बाहों में लेने को तरस रहा था और वो उस बात से अनजान तो ना थी। गुस्से से लैपटॉप बंद करते वो दराज से सिगरेट तलाशने लगा। क्या ढूंढ रहे हैं शाहवेज? नींद से भरी आवाज पर उसके लब भेंचे। सो जाओ चुप करके, जो चाहिए होगा खुद ढूंढ लूंगा, तुम अपनी नींद ना खराब करना। वो उस पर तंज के तीर चलाता सिगरेट और लाइटर लिए टेरेस पे चला गया। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ शोले भड़क रहे थे। उसे एक उम्मीद थी कि वो शायद उसे मनाने टेरेस पर आए, मनाने ना सही उसकी फिक्र में आ जाए, पर वो नहीं आई और अपने इज़्तिराब पर काबू करते वो सारी सिगरेट की डिब्बी खत्म कर गया। जबकि दूसरी जानिब अपने कमरे की खिड़की से शाहवेज को देखती शाजी के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। कोई ना कोई बात जरूर है इन दोनों मियाँ बीवी के बीच। वो टोह लेती आंखें छोटी करके शाहवेज को देखती, कमरे की खिड़की के पट बंद करके। कुछ देर बाद खुद से लड़ लड़ के वो भी बिलाखिर कमरे में वापस जाता। टेरेस का दरवाजा बंद कर गया। आप चुप चुप क्यों है शाहवेज? वो उसके पास होते पूछ रही थी, जबकि वो बहुत खामोशी से पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था। शाहवेज उसे नजरअंदाज करते बालों में कंघी फेरने लगा। शाहवेज, वो रुंदे लहजे में उसके पास हुई। दूर रहकर बात किया करो शनाया। वो आज पहली बार उसे अपने करीब आने पर टोक गया। शनाया की आंखें पानियों से भर गईं। अब फिर वही ड्रामा, मेरे सामने ये झूठे आंसू मत बहाया करो शनाया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें सिर्फ मुझसे खुद को बचाना होता है, मेरी गुर्बत से बचना होता है। बाद में तुम्हारी हंसी और कहके नहीं रुकते, पूरे घर में गूंज रहे होते हैं। बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। शाहवेज आज सख्त गुस्से में भरा था और शनाया उसे सहम के आंसू रोके देख रही थी। बहुत तकलीफ होती है ना तुम्हें मेरे लम्स से, मेरे छूने से? आज के बाद तुम तड़पोगी मेरे करीब आने के लिए, तब भी शाहवेज अंसारी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। वो अपनी कहकर जाने लगा कि फिर से पलटा। और हाँ, ये रिश्ता अम्मी जान की मर्जी से हुआ है, उनकी ख्वाहिश थी, जो मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगा। लेकिन वो जो कहना चाहता था कह नहीं पा रहा था। वो सख्त अल्फाज चाह के भी मजीद इस्तेमाल नहीं कर पाया। आइंदा मेरा जरे से भी करीब मत आना शनाया, उसी में तुम्हारी बेहतरी है। वो उसे सख्ती से वार्न करता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि शनाया पत्थर बनी वहीं बैठी रह गई। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे। इशल और शनाया मिलकर नाश्ता लगा रही थी, लेकिन आज बहुत खामोशी थी। ना उनकी बातों की आवाज आई, ना हंसी की गूंज गूंजी। काफी देर वो इस हंसी की झनकार सुनने के लिए मुस्तरिब बैठा रहा, लेकिन नाश्ता लग गया और खामोशी ना टूटी।
अरे शाहवेज बेटा, याद आया, शाजी को ना कॉलेज जाना था, उसके कुछ जरूरी कागजात रह गए हैं वहां, तो तुम इसे साथ ले जाना आज, अगर जल्दी फ्री हो जाओ तो। खाला जाहिदा ने सिलसिला कलाम जोड़ा। पहले तो वो इनकार करने लगा, लेकिन फिर कुछ सोच के चुप कर गया। मैं शाम 4 बजे आऊंगा, तैयार रहना, ले जाऊंगा, संजीदगी से कहते वो उठा था। हमेशा की तरह शनाया उसका सारा सामान ले आई। शाहवेज ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली। उसका सर झुका हुआ था। शाहवेज का शिद्दत से जी चाहा उसकी नीली आंखों को एक बार देख ले, लेकिन वो सर ही नहीं उठा पा रही थी। शाहवेज बाहर निकला और कीज के लिए वापस पलटा। शनाया कीज लिए खड़ी थी। दिल पे पत्थर रखे वो पलट के उससे कीज लेता गाड़ी की जानिब बढ़ गया। गाड़ी में बैठा वो जा चुका था, जबकि शनाया का वजूद पत्थर हुआ। मतलब आज वो उसके करीब नहीं आया था। उसकी नाक के साथ नाक रब नहीं की। वो दूर जा चुका था। शनाया, तुम्हारी वजह से वो तुमसे दूर हो गया। दिल गिरफ्ता होती वो वापस अंदर आई। उसका रुख अपने कमरे की जानिब था। उसके आंसू ही नहीं थम रहे थे कि वो सबके साथ बाहर जाके बैठती। वो तो उसके चेहरे की मुस्कान भी छीन के ले गया था। वो हिचकियों से रो रही थी। आज उसका पुलिस स्टेशन में सारा दिन बेचैनी में गुजरा। वो जानता था वो रोती रहेगी। छोटे से दिल की थी वो, जरा सी डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो आज तो शाहवेज ने उसे खूब सुना डाली, पर अब पछता रहा था। ठीक है, पास नहीं जाना, आराम से भी कह सकता था। इसमें इतना सख्त डांटने की जरूरत नहीं थी। बस पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया था। वो अपने जमीर की अदालत में खुद को खड़ा किए बेचैन हुए जा रहा था। उसका जी चाहा फोन कर ले उसे, पर फिर कुछ सोच के रुक गया। 4 बजे तक फ्री होकर उसने घर ही जाना था। तब अपनी जान को देख लेता। हाँ, वो उसकी जान ही तो थी। भले ही गुस्सा करता, प्यार करता, डांट देता, लेकिन थी तो उसकी ना। क्या ये सुकून काफी ना था? 4 बजे के करीब वो घर में दाखिल हुआ तो शाजिया उसे बिल्कुल तैयार मिली, और उसकी तैयारी देखकर शाहवेज के माथे पर बल पड़े। चमक वाला सूट पहने, लबों पर गहरी लिपस्टिक लगाए, वो सर पे ना होने के बराबर दुपट्टा लिए शाहवेज को गहरी निगाहों से देख रही थी, जो शाहवेज को सख्त नागवार गुजरा। इस हालत में जाओगी मेरे साथ? क्यों, क्या हुआ? वो दुपट्टा ठीक करते बोली। किसी फैशन शो में जा रही हो क्या? इतना बना संवरा तो आज तक उसने इशल और शनाया को भी नहीं देखा था, और इस तरह की बेहूदगी कभी उन्होंने की भी नहीं थी। ठीक तो हूं शाह भाई, वो हैरानी से बोली। जाओ चादर लेकर आओ। वो लब भेंचे अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गया। उसका दिल बस शनाया को एक बार देखने को बेचैन था। उसे देख लेता तो बेचैन रूह को सुकून मिल जाता। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो खुशबुओं ने इसका इस्तकबाल किया। साफ शफाफ, साफ सुथरा अपना कमरा देख दिल को सुकून सा महसूस हुआ। अभी वो अपनी चीजें टेबल पर रख रहा था कि उसे ड्रेसिंग रूम से आवाज सुनाई दी। यार इशल, अब आ भी जाओ, इस जिप को बंद कर दो। पता नहीं कहाँ अटक गई है, बंद ही नहीं हो रही। शाहवेज आने वाले होंगे। शाहवेज के बेख्तियार कदम ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़े, जिसका दरवाजा अधखुला देख वो उस पर दबाव डालता अंदर दाखिल हुआ। शनाया आईने के सामने खड़ी अपनी फ्रॉक की बैक जिप को बंद करने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जबकि उसकी दोदिया कमर और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स को देखते शाहवेज के गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। प्लीज इशल, बंद कर दो इसे। बिना ये देखे कि दरवाजे पर कौन है, वो रूहान से होते बोली। दिल पे पत्थर रखे वो वापस पलटा। खुद पे जब्त करना आज और भी मुश्किल लग रहा था। प्लीज इशल, जल्दी बंद कर दो, शाहवेज आ जाएंगे अभी, और मैं तैयार भी नहीं हुई। फिर से उसकी आवाज कानों से टकराई तो वो माथे पर बल डाले उसके पीछे जा खड़ा हुआ। अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते सर उठाकर उसने आईने में देखा तो साकित ही रह गई। शाहवेज ने एक झटके से उसकी फ्रॉक की जिप को बंद किया। उसके हाथों का खुरदरा लम्स बहुत ही हल्का सा शनाया को अपनी कमर पर महसूस हुआ। मेरी बीवी हो तुम, और तुम्हें मेरे अलावा कोई भी देखे, चाहे फिर वो मेरी बहन ही क्यों ना हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आइंदा एहतियात करना, समझी तुम? वो उसे घरकते हुए सख्त लहजे में कहता बाहर निकल गया, जबकि शनाया तो बर्फ की सील की तरह जम के रह गई। इशल और शनाया को भी साथ आता देख शाजी के चेहरे के जाविये बिगड़े, और जब पूरे हक से शनाया फ्रंट सीट पर बैठी तो शाजी के तन बदन में आग लग गई। सारे रास्ते खामोशी छाई रही। शनाया अपनी शॉल की ओर से कनखियों से शाहवेज को देखती तो उसका स्पॉट चेहरा देख वापस सामने विंड स्क्रीन पर देखने लगती। कॉलेज के पास पहुंचे तो कॉलेज बंद था। सर जी, 4 बजे कौन सा कॉलेज खुला होता है? चौकीदार ने मजाकन कहा तो शाहवेज ने घूर के शाजिया को देखा, जो सर झुकाए चोर नजरों से अब इर्द गिर्द देख रही थी। मेरा भी दिमाग काम नहीं किया। 4 बजे वाकई एडमिन ऑफिस तक बंद हो जाता है।
फिर शाजिया ने ऐसा क्यों बोला? शाहवेज थोड़ा अपसेट हुआ, लेकिन फिर सर झटक दिया। राशिदा बेगम के कहे के मुताबिक वो आज उन्हें डिनर करवाने लाया था होटल में। एक केबिन में दाखिल होते इशल और शनाया ने नकाब उतारा और गहरा सांस भरा। तुम लोग ऑर्डर डिसाइड करो, मैं आता हूँ। शाहवेज एक फोन कॉल रिसीव करता केबिन से बाहर निकल गया तो वो अपना फेवरेट मेन्यू देखने लगी, जबकि शाजी उन दोनों कबाब की हड्डियों को देखती बेचैताब खाती रह गई। कुछ ही देर बाद शाहवेज वापस आया। खाना सर्व हो चुका था। खुशगवार माहौल में खाना खाते वो लेट नाइट घर वापस लौटे थे। आज तो मजा ही आ गया भाई, वीक में एक बार इस तरह की तफरी बनती है। इशल चहक रही थी, जबकि शाहवेज बहन को यूं हंसता मुस्कुराता देख दिल से खुश हुआ था। तुम चलो रूम में, मैं अम्मी से मिलकर आया। वो शनाया को कहता उसे अपनी चीजें थमाता राशिदा बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गया। तुम क्यों नहीं दूर हो जाती शाहवेज की जिंदगी से? शाजी की बात पे शनाया के अपने रूम की जानिब जाते कदम थमे थे। क्या मतलब है इस बकवास का? शनाया को गुस्सा ही आ गया। बकवास नहीं, हकीकत है। तुम शाहवेज के सर पे जानबूझ के मुसल्लत हुई हो। जानती हूं उसको उसका हक अब तक नहीं दिया तुमने। तरसा के रखती हो, अपने पीछे पीछे लगाती हो। यू नो, वो तुम जैसी बेहिस लड़की को डिजर्व ही नहीं करता, जो उसको प्यार का जवाब प्यार से दे ही नहीं सकती। शाजिया ने हवा में तीर छोड़ा जो निशाने पे जा लगा। क्या क्या कह रही हो ये सब? किसने कहा तुमसे? शनाया को अपने इर्द गिर्द धमाके से होते महसूस हुए। कहने की जरूरत है? साफ महसूस होता है शाहवेज तुमसे खुश नहीं। झूठ है ये, शनाया ने उससे ज्यादा खुद को यकीन दिलाते कहा। धोखा किसको दे रही हो? तंग पड़ चुका है शाहवेज तुमसे। मेरी तरफ बढ़ना चाहता है वो, लेकिन तुम्हारी वजह से कदम रोक लेता है, और मैंने कह दिया है उससे कि वो मुझे जायज तरीके से अपनाए। मैं उसकी हर रात रंगीन बनाऊंगी। थोड़ा सा शनाया के कान के करीब झुकी। पूरी पूरी रात अपनी मोहब्बत और कुर्बत की बारिश में भिगो के रख दूंगी कि मेरे अलावा उसे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। मेरी मोहब्बत की गर्मी जब उसे मिलेगी तो हर चांद चेहरा भूल जाएगा वो। जस्ट वेट एंड वॉच। शाजी उसे चैलेंज करके जा चुकी थी, जबकि शनाया की आंखें एक बार फिर से भीग गईं। वो उसे जवाब दे देती, बहुत अच्छे जवाब देती, लेकिन जब दिल में चोर हो तो कैसे जवाब देती? क्योंकि यही सच था, उसने अब तक शाहवेज को उसका हक नहीं दिया था। घर भर में इशल की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हारिब सुल्तान के दुबई से वापस लौटने पर बहुत धूमधाम से हर फंक्शन अरेंज किया गया। हारिब इशल के मामू का बेटा था और इशल उसकी मोहब्बत, या शायद जनूनी मोहब्बत। वो हर फंक्शन को दिल से खुद भी इंजॉय कर रहा था, जैसे इशल को पाकर उसने दुनिया फतह कर ली थी। इशल भी बहुत खुश थी, क्योंकि हारिब उससे भी बहुत अच्छा लगता था। शादी की तैयारियों में सब इतना उलझे कि एक दूसरे को क्या देखना अपना होश भी न था। हर फंक्शन को शाहवेज और शनाया ने बेहतर से बेहतरीन बनाया था। शाजिया भी हर फंक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, यहाँ तक कि अब वो शाहवेज से हंस मुस्कुराकर बात कर लेती। शाहवेज भी अब उसकी बातों का जवाब उकता कर नहीं देता था। एक दोस्ती सी महसूस हो रही थी दोनों के बीच में ही, जिसे सबने नोट किया। वैसे आपा देखे ना, कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ खड़े। जाहिदा खाला ने शाजी और शाहवेज को एक साथ देखते प्यार से कहा तो राशिदा बेगम की निगाह भी उनकी जानिब उठी, तो उनके चेहरे से भी मुस्कान एकदम सिमटी। स्टेज पे इशल के पास शाहवेज और शाजी ऐसे खड़े थे जैसे कपल हों। राशिदा बेगम की बेचैन निगाहों ने शनाया को ढूंढना चाहा, जो उन्हें एक ओल्ड लेडी के पास खड़ी दिखाई दी। वो उनसे मुस्कुराकर हाल अहवाल पूछ रही थी, जबकि राशिदा बेगम के माथे पर बल पड़े। अजीब लड़की थी, अपने शोहर को खुले सांड की तरह छोड़ रखा था। न जाने कब अकल आएगी इस लड़की को और अपने शोहर को अपने पल्लू से बांधेगी। राशिदा बेगम ने बड़बड़ाते हुए नजरें फेरी। खाला जाहिदा अपने किसी जानने वाले की जानिब बढ़ गई। इतने में शनाया स्टेज की जानिब जाती दिखाई दी। स्टेज पे पहुंचते वो आगे बढ़ने लगी कि शाजी ने एकदम से उसकी राह में नामहसूस अंदाज में पांव अड़काया। वो लड़खड़ा के सीधा दूल्हे पे गिरने लगी कि शाहवेज ने फौरन आगे बढ़ते उसके पेट पे हाथ रखे उसे थाम लिया और अपनी जानिब खींचते उसे अपने सीने से लगाया। शनाया को तो सांस ही हलक में अटक गया। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। उसकी आंखें एकदम से पानियों से भरने लगी, बेइंतहा सुबकी होने लगी कि वो शाहवेज के सीने में चेहरा छुपाने लगी। उसकी कमीज को मजबूती से जकड़े खुद पे जब्त करती वो सुर्ख हो रही थी। ये सोच के कि वो हारिब के ऊपर गिर जाती तो कितना बुरा लगता। कितनी सबने बातें बनानी थी। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। शाहवेज ने उसकी गिरफ्त को अपनी शर्ट पे सख्त होता महसूस किया। उसकी कमर सहलाने लगा, जबकि दुल्हन बनी इशल उसकी आंखों में आंसू देखते तड़पी थी, क्योंकि उसने शाजी को उसके आगे पांव रखते देख लिया था
और शाजी पे उसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, पर दुल्हन बने वो कुछ कह नहीं सकी। सबकी दुआओं में इशल रुखसत हो गई। सब मेहमान धीरे धीरे अपने घर चले गए, सिवाय खाला जाहिदा के, जो आके यहीं पक्की चिपक गई थी। राशिदा बेगम ने शनाया को अपने कमरे में बुलवाया था। वो उसे बहुत मोहब्बत और प्यार से समझा रही थी, जैसे उसकी सास नहीं माँ हो। मैं जानती हूँ शनाया, ये सब मुश्किल होगा, पर बेटा, शुरू में मुश्किल लगता है, बाद में जिंदगी पुरसकून गुजरती है और किसी तीसरे को बीच में घुसने का मौका नहीं मिलता। अपना और शाहवेज का रिश्ता इतना मजबूत कर लो कि वो तुम्हारे अलावा किसी तरफ निगाह भी ना उठाए। समझ रही हो ना? वो उसे और भी बहुत सारी बातें समझाती उसे उसके कमरे में भेज चुकी थी। आज इशल की रुखसती हुई थी, उसकी अजीज जान दोस्त की। वो अकेलापन महसूस कर रही थी, उदास भी थी। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ती कि उसे किसी के हंसने की आवाजें सुनाई दी, तो वो टीवी लाउंज में ही आ गई, जहां शाहवेज और शाजी बैठे कोक और लेज एंजॉय कर रहे थे। शनाया को आता देख शाहवेज ने मुस्कुराकर उसे देखा। आज अब शनाया, देखो शाजी तो कितने जोक सुना रही है। हद है शाजी, तुम और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर। शाहवेज और वो एक ही सोफे पर फासले से बरेजमान थे, जबकि शनाया सामने एक सिंगल सोफे पर टिक गई। तुम भी कोक लो, शाजी ने मुस्कुराते हुए उससे भी ऑफर की। नहीं, मैं नहीं पीती, संजीदगी से जवाब दिया। लगता है उदास हो गई हो इशल के जाने से। शाहवेज का भी यही हाल था, बट अभी इतने जोक सुनाए हैं कि उदासी झट से दूर हो गई। चलो तुम्हें भी सुनाती हूँ, शाजी ने मोबाइल खोलते बहुत अदा से कहा। शनाया ने एक नजर शाहवेज को देखा, जिसकी तवज्जो शाजी पर थी, और जैसे ही शाजी का जोक एंड हुआ, दोनों ही खिलखिला दिए। शनाया, क्या हुआ, तुम्हें हंसी नहीं आई? शाजी ने उसे टोका। वो क्या जवाब देती कि उसने कुछ सुना होता तो वो हंसती ना। मुझे नींद आ रही है शाहवेज, रूम में चलें। वो शाहवेज की जानिब मुड़ते मासूमियत से पूछने लगी। अरे भाई, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाओ, शाहवेज को क्यों साथ घसीट रही हो? अभी बहुत सारे जोक्स हैं जो शाहवेज ने सुनने हैं। शाजी ने कोक का आखिरी सिप लेते मगरूरियत से कहा। हाँ शनाया, रुको, अभी इतनी जल्दी क्या सोना, थोड़ा बैठते हैं ना। वैसे अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शाहवेज ने सरसरी अंदाज अपनाया तो शनाया दिल पे पत्थर बांधे वहां से उठकर रूम में आ गई। आज कितना उसका जी चाहा कि शाहवेज उसकी तारीफ करे। खींच के जैसे अपनी गोद में बिठाता था, वैसे बिठाए उसके साथ थोड़ा करीब होने की, उसे छूने की कोशिश करे, लेकिन उसने तो उसे मुकम्मल नजरअंदाज ही कर दिया था। वो आंसू पोंछते ड्रेस चेंज करती बिस्तर पर लेट गई और कितनी देर आंसू बहाती रही, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि शाहवेज कमरे में आ गया। पर उसे सोता हुआ देख बिना उसे छेड़े या कुछ कहे ड्रेस चेंज करता अपनी जगह करवट बदल कर लेट गया। आज उसने शनाया को हक भी नहीं किया था। मर्द को अगर एक औरत से तवज्जो और मोहब्बत ना मिले तो जहां से मिलने लगे वो वहीं रागिब हो जाता है। अपनी ताई अम्मी की बात याद करते वो सिसकी थी और मुंह पे हाथ रखे अपनी सिसकी का गला घोंटा था। वो शाहवेज को खुद से दूर होता महसूस करते तड़प रही थी। राहिब और इशल एक दूसरे के संग बहुत खुश थे। आज वो वलीमे के बाद अपनी माँ के घर रहने आई थी। उसे खुश देख के कुछ पल को शनाया अपना सारा गम भुला बैठी और उसकी खूब आवभगत करने लगी। अब बस भी करो, सुबह से घन चक्कर बनी हुई हो। इशल ने लगातार शनाया को किचन में उसके लिए मजे मजे की डिशेस तैयार करते देख टोका था। क्या बात है शनाया, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं जो पहले हुआ करती थी। तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? इशल उसकी सूजी आंखें देखते पूछ बैठी। नहीं यार, तुम्हारे बिना अब उदासी सी आ गई है ना? शनाया ने टाला। मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? भाई से कोई बात हुई है क्या? अब उनकी कोई बात भी नहीं करती तुम, और ये शाजी आपी कुछ ज्यादा ही भाई के नजदीक नहीं हो रही। इशल ने सलाद बनाते तबसरा किया तो शनाया की आंखें फिर से भीग गईं। इशल ने उसे यूं देखा तो जबरदस्ती उसे एक तरफ बिठाते उसे अपने साथ लगाया। इशल ने उसे हौसला दिया तो वो थोड़ा थोड़ा उस पर खुलने लगी। मैं क्या करूं इशल, मुझसे चाह के भी कुछ नहीं होता, और मैं शाहवेज को खोना भी नहीं चाहती। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। वो रो रही थी। अच्छा रोना बंद करो। फर्स्ट टाइम तो सबके लिए ही मुश्किल होता है, लेकिन उसके बिना इस दवाजी जिंदगी शुरू भी तो नहीं होती। अब हारिब को ही देख लो, मैं इतना डर रही थी, मैंने भी रोका। पहली रात में एक अजीब सा खौफ छाता है। हवासों पर यकीन मानो, जो प्यार करते हैं वो इतना प्यार से समेटते हैं कि क्या बताऊं। तुमने हारिब भाई को करीब आने दिया? शनाया ने हैरत से पूछा। दूर रखने का जवाब ही नहीं बनता था, और ये उनका हक था। मैं उनसे उनका हक छीन के अल्लाह को नाराज करके लानते नहीं ले सकती थी। इशल की बात पे शनाया के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मुझसे अल्लाह नाराज है? शनाया को एक नई फिक्र सताने लगी। 1 मिनट, ये ऑर्डर करते हैं। इशल जो मोबाइल पर हारिब की बर्थडे के लिए कुछ अच्छा सा सर्च कर रही थी,
ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली थी। अचानक से उसकी निगाह किसी चीज पर टिकी तो उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। ये क्या है? शनाया ने ना समझी से पूछा। ये मेडिसन है, ईशल ने एक आंख विंक करते कहा और ऑर्डर भी कर दिया। अब वो शनाया की फिजिक के मुताबिक रेड साड़ी का ऑर्डर कर रही थी। ये कैसी है? ईशल ने उसके सामने करते पूछा। इतनी वाहियात, ये पहन के जाओगी हारिब भाई के सामने, शर्म नहीं आएगी? शनाया ने सुर्ख पड़ते गालों के साथ पूछा। वो तो मुझे 1 मिनट से पहले अपनी गोद में लेकर उसे तार फेंकेंगे। ईशल ने झुरझुरी लेते धीरे से कहा, जो शनाया सुन ना सकी। ये मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर रही हूँ, तुम ये पहन के रात को भाई के पास जाओगी, समझी तुम? ईशल ने ऑर्डर देते हुए उसे भी ऑनलाइन कार्ट में डाला। ये कमरबंद भी बड़ा क्लास का है, साड़ी के साथ ये तो कमाल ही ढाएगा, कयामत लगोगी कयामत। ईशल अभी से एक्साइटेड हो रही थी। पागल हो गई हो ईशल, मैं ऐसा कुछ नहीं पहनूंगी। तोबा तोबा, इतनी गंदी हो गई हो तुम शादी के बाद। शनाया ने घुटते हुए खाना लगाते कहा। हाय बेचारा मेरा भाई, सारी जिंदगी ही तरसता रहेगा बीवी की मोहब्बत को। ईशल ने दुहाई दी तो वो पलटी। अल्लाह ना करे, मैं तो उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ ईशल, वो नम लहजे में बोली। इस खाली खुली मोहब्बत का अचार डालना है भाई ने। जब मोहब्बत का इजहार ना हो, कुर्बत ना हो, मुंह जोर जज्बों को तन्हाई के पल ना मिले, क्यों जुल्म कर रही हो मेरे भाई पर? ईशल ने अफसोस से कहा। प्लीज ईशल, ये सब मेरे बस की बात नहीं। वो सर झुकाए बोली। तो ठीक है, मत करो कुछ भी। ले उड़ने दो उस शाजी को, मेरे भाई को, जो अपनी कुर्बत से भी नवाज देगी और भाई की सब जरूरतों को भी पूरा करेगी। तुम बैठी रहो, अपने हुस्न की हिफाजत करती रहो, जो मेरे भाई के तो किसी काम का नहीं। ईशल ने उसे अच्छी खासी सुना डाली और किचन से बाहर निकल गई। शनाया सुन ही रह गई। वो कैसे ये सब करे, उसे शर्म आ रही थी। वो साड़ी का सोच के ही मरने वाली हो गई थी। कुछ आके वो साड़ी पहन के शाहवेज के सामने जाती। रात को खाने पे सभी खुशखपियों में मसरूफ रहे। शाहवेज बहन को देखकर बहुत खुश था। रात के खाने पे हारिब भी आ गया था। सबने मिलकर खूब इंजॉय किया। क्या बात है भाभी, आप बोलती कम है या मेरी वजह से झिझक रही हैं? हारिब की बात पे शनाया जबरदस्ती मुस्कुराई। उसके मुरझाए चेहरे को देखते शाहवेज भी चौंका था। काफी दिनों से उनकी आपस में बात भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। सुबह वो जल्दी चला जाता और रात को जब लौटता तो शाजी उसे टीवी लाउंज में अच्छी कंपनी देती। वो भी वहीं बैठा रहता ताकि शनाया सो जाए और उनकी आपस में फिर से एक बात को लेकर लड़ाई ना हो, वरना रात के पहर खूबसूरत बीवी के आगोश में लेकर सोने को किसका दिल नहीं मचलता, ये वही जानता था। पर खुद पे जब्त करते करते अब वो हार रहा था। नहीं हारी भाई, ऐसी बात नहीं, मैं बस तबीयत नहीं ठीक इसकी, इसलिए थोड़ा सुस्त है, वरना मुझसे ज्यादा हंसती बोलती है। ईशल ने लुकमा दिया तो शाहवेज के माथे पर फिक्रमंदी की लहरें नमूदार हुई। क्या हुआ तबीयत को? अच्छी भली तो है, जाहिदा खाला ने ड्राई फ्रूट से इंसाफ करते सरसरी अंदाज में कहा और शाहवेज जो कुछ कहने वाला था एकदम चुप हो गया। अरे शनाया बेटा, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, बहुत शदीद सर में दर्द हो रहा है। खाला जाहिदा ने शनाया को वहां से उठाना चाहा। जी बना लाती हूँ, और किसी ने पीनी है? शनाया ने आदाबे मेजबानी निभाया। नहीं भाई, नहीं पीनी। वो किचन की जानिब बढ़ गई। हम तो आइसक्रीम खाने जाएंगे, क्यों शाहवेज सही है ना? शाजी ने बहुत मान और मोहब्बत से कहा तो शाहवेज इनकार न कर सका। कौन सा भाई, कहाँ का भाई? ईशल को उसका सिर्फ शाहवेज कहना सख्त बुरा लगा था। चलो भाई, सब चलते हैं, उठो जल्दी से ईशल। शाजी ने उसे खींचकर उठाया तो हारिब भी फट से उठ गया। चलते हैं, शनाया को तो आ लेने दो। ईशल ने उन सब के उठ जाने पर उन्हें एहसास दिलाया। अरे वो तो चाय बनाने गई है, ना जाने कब तक बनेगी, उसके लिए ले आएंगे ना, इतनी फिक्र ना किया करो, चलो जल्दी। शाजी ने कहते ईशल का हाथ जोर से खींचा तो ईशल शिकवा की ना नजरों से भाई को देखती हारिब के साथ बाहर निकली, जबकि शाहवेज जो पलट के किचन की जानिब देख रहा था कि शायद अभी वो निकले तो उसे पुकारे, लेकिन इससे पहले ही शाजी ने उसे बाहर से आवाज दी और गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रखा। सबकी फिक्र है इस लड़की को सिवाय शौहर के। वो दिल बर्दाश्ता होता मजबूरन लब भेंचे बाहर निकल गया। शनाया चाय बनाकर लाई तो बाहर सिर्फ राशिदा बेगम और जाहिदा खाला ही थी। ये बाकी सब कहाँ चले गए? हैरत से पूछा। सब बच्चे आइसक्रीम खाने गए हैं। जाहिदा खाला ने चाय का कप लेते फख्र से कहा। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची को, हर वक्त हंसती मुस्कुराती है, सबको खुश रखती है। अब देखो ना, ईशल आई है तो उसे कितना ख्याल था, सबको आइसक्रीम के लिए ले गई। उनकी बात पे राशिदा बेगम ने अफसोस से शनाया की जानिब देखा। वो चाहती तो उसकी साइड ले सकती थी, लेकिन वो चुप रही। कभी कभी जरूरत से ज्यादा साइड लेना भी अगले को बेपरवाह कर देता था, और शनाया बेपरवाह हो चुकी थी, इसलिए अब उसे संभलना चाहिए था। राशिदा बेगम ने चाय का घूंट भरते गहराई से सोचा।
जबकि वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। दिल बेइंतहा दुखा था। वो सुबह से किचन में खड़े सारे काम अकेले कर रही थी। सबको खाना सर्व किया, किचन साफ किया, बर्तन धोए, किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। वो सब कुछ माथे पे बल डाले बिना करती चली गई और वो सब जाते हुए उसे भूल ही गए। उसे किसी और से क्या शिकवा, शाहवेज ही बदल गया था। शनाया के दिल में दर्द की टीस उठी। वो हल्के हल्के बुखार में शावर लेती बिस्तर पर आई तो उसका बुखार जोर पकड़ गया। कंफर्टर खोले, सर से पांव तक खुद को लपेटा, लेकिन फिर भी ठंड लगे जा रही थी और बदन भी बुरी तरह टूट रहा था। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुला और शाहवेज अंदर दाखिल हुआ। उसे सर पांव तक कंफर्टर में देखता सुलग उठा। जरा जो परवाह हो इन मोहतरमा को मेरी। वो गुस्से से शावर लेने चला गया। वापस पलटा तो वो कंफर्टर में ही हिले जा रही थी। शाहवेज उसका मूवमेंट करना देख उसके करीब गया। चेहरे से कंफर्टर हटाया तो वो हद दर्जे सुर्ख हो रही थी। माथे पर चेक किया तो उसे बहुत तेज बुखार था। शनाया, शनाया उठो। शाहवेज को अपनी लाइल्मी पर अफसोस हुआ। उसकी तबीयत वाकई खराब थी और उसने परवाह नहीं की थी। उसे जबरदस्ती उठाते बुखार की टैबलेट खिलाई। वो बदहवास सी उसके सीने पे सरक गई। उसे कुछ होश ना था। शाहवेज ने उसके जिस्म को अपने जिस्म में ढांपा। वो लरस रही थी। उसका लरसना महसूस करते शाहवेज का दिल 120 की रफ्तार से दौड़ा। उसका जी चाहा सब कुछ भुलाए फरामोश किया, आज उससे अपना हक ले ले। पर फिर उसकी नाज़गी का ख्याल करता वो उसे बस खुद से लिपटाए सोने की कोशिश करने लगा और वो बार बार उसके सीने में घुसती खुद भी पसीने से शराबूर हो गई और शाहवेज को भी कर चुकी थी। सुबह जागी तो उसका सर शाहवेज के सीने पर था। शर्म के मारे वो एकदम पीछे हटी तो शाहवेज की आंख खुल गई। उसका यूं एक झटके से पीछे जाना शाहवेज को बुरी तरह चुभा था। झटके से कंफर्टर को पीछे करता वो उठ खड़ा हुआ। अपनी शर्ट पहनने लगा जो रात को पसीने में शराबूर होने की वजह से वो उतार चुका था। उसका बरहना चटानी सीना देखती शनाया ने लरसते हुए पलके झुकाई। शाहवेज बिना कुछ कहे लब भेंचे बाथरूम की जानिब बढ़ गया। उफ खुदाया, ये तो नाराज लग रहे हैं, बल्कि नाराज तो मुझे होना चाहिए जो रात को मुझे अकेला छोड़कर सबके साथ आइसक्रीम खाने चले गए। वो बाथरूम से बाहर आया तो शनाया को सर थामे देख लब भेंच गया। उठना नहीं तुमने, सब नाश्ते पर वेट कर रहे होंगे। शनाया मैडम के हाथ का बेस्ट नाश्ता सभी को चाहिए होगा। वो अपनी रेस्ट वॉच पहनते तंजिया बोला था। वो मैं बस जा ही रही थी। कंफर्टर हटाते रुंदे लहजे में बोली, हाँ जाना चाहिए, अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं कि जरा सा बुखार पे बहाना बनाकर बिस्तर पर ही लेट जाओ। सारे बहाने तो शाहवेज अंसारी के लिए हैं तुम्हारे पास, बाकी सब के लिए तो चाहते टूट टूट के बरसती हैं बिना अपनी तबीयत की परवाह किए। गुड, इस साल बेस्ट बहू का खिताब तुम्हें ही मिलेगा। वो अपनी चीजें उठाता तंज के तीर चलाते बाहर निकल गया और शनाया उसके लफ्जों के तीर सहती रो दी। शाम तक उसकी तबीयत काफी संभल गई थी। इशल भी उसकी तबीयत खराबी की खातिर रुक गई थी। शाम को सब चाय पी रहे थे कि इशल का ऑर्डर किया हुआ पार्सल भी आ गया। इशल बहुत खामोशी से वो पार्सल लिए शनाया के रूम में आ गई और उसे अच्छा खासा लेक्चर दिया कि वो उसकी बात माने। कुछ उलमा के बयान भी उसे मोबाइल पर सुनवाए ताकि वो थोड़ी सुधर जाए। इशल, मैं ये सब पहन के उनके सामने जाने का हौसला कहाँ से लाऊं? वो रूहान से होते बोली, ये है ना, ये किस मर्ज की दवा है? टैबलेट्स उसके सामने करते बोली, इससे क्या होगा? इससे मेरी जान हौसला मिलेगा, सिर्फ एक गोली खा लेना, तुम्हारे पसीने छूट जाने। इशल ने आंख दबाई। वो तो रात को भी बहुत ज्यादा आए थे जब बुखार था। शनाया ने मुंह बनाते कहा, उफ यार, ये और तरह के हैं। अच्छा छोड़ो, इसको लेने से तुम में हौसला पैदा हो जाएगा भाई को इस साड़ी में फेस करने का और खुद बखुद तुम उनके करीब जाने लगोगी। क्या समझी? समझ गई। इशल, वो तो मुझे देखते ही नहीं, तो क्या एक गोली उन्हें भी दे दूं? उसकी बात पे इशल ने माथे पर हाथ मारा। उन्हें इस गोली की नहीं, इस लाल गोली की जरूरत है। इशल ने उसकी जानिब इशारा करते कहा, अब कुछ गलत मत कर देना, सिर्फ एक गोली खाना और भाई के हाथ ना लगे कुछ, वरना छोड़ेंगे नहीं, समझी? चलो अब साड़ी पहनो जल्दी से, मैं तुम्हें तैयार करके निकलूं। इशल ने जबरदस्ती उसे साड़ी जेबतन करवाते उसको हल्का हल्का मेकअप किया और उसे सब समझा के बाहर निकल आई। ए अल्लाह, मेरी इज्जत रख लेना, ये लड़की कुछ गड़बड़ ना कर दे। रात को शाहवेज रूम की जानिब बढ़ने लगा कि शाजी ने रास्ता रोका। अरे आते ही रूम में आए, कुछ देर बाहर बैठते हैं। शाहवेज ने होले से इनकार कर दिया। वो सुबह जो उसे उसकी खराब तबीयत पर सुनाकर गया था, सारा दिन अपसेट रहा। इशल से फोन करके उसकी तबीयत का पूछा पर सुकून नहीं मिल रहा था। अब घर आते ही उसने सीधा कमरे का रुख किया। शाजी को वो इग्नोर करते अपने कमरे में चला गया। वो पांव पटकती वापस मुड़ी के इशल उसे देखकर मुस्कुराई। बस कुछ दिन है अब आपके यहाँ, क्योंकि जिस मकसद से आप यहाँ आई थी ना, वो तो अब कभी भी पूरा होने से रहा। इशल ने उसका कांधा थपथपाते आंख विंक करते अपने कमरे की जानिब बढ़ते कहा। शाजी सुलगती रह गई।
وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو شنایا رخ دوسری جانب کیے کھڑی تھی، جبکہ اس کو سر سے پیر تک دیکھتے شاہویز کا دل ایک پل کو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کی لال ساڑی اس کے جسم کو ڈھانپ کم عیاں زیادہ کر رہی تھی، اور اس پر اس کی کمر کی چین جو اس کی نازک سی کمر پر انتہا کی جچ رہی تھی۔ شاہویز کی آنکھوں میں پل میں ہی خماری چھائی۔ وہ اس کے قریب آیا کہ وہ اسی لمحے پلٹی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ شاہویز نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ابھی بھی ہلکا ہلکا گرم تھا، لگتا ہے بخار دماغ پر چڑھ گیا۔ شاہویز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ اگلے ہی پل شنایا نے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کیں۔ یہ عشق کا جادو ہے شاہویز، جو سر چڑھ گیا ہے۔ اس کے قریب ہوتی اپنی ناز کی اچھے سے اسے محسوس کرواتی اس کے کان کی لو کاٹنے لگی۔ شاہویز کے پورے جسم میں سپارک ہوا۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ اس کی شنایا ہے۔ ساڑی کے چھوٹے سے بلاؤز میں اس کی دھڑکنوں کو ہی چھپایا ہوا تھا، لیکن ان کا چھپانا نہ چھپانا ایک جیسا تھا۔ اس کا کھلتا شفاف بدن ایک پل کو تو شاہویز سب کچھ بھول ہی گیا۔ اس کی سراہی دار گردن پہ وہ جھکا، شنایا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ شو حواس میں نہیں تھا، بس اتنا جانتی تھی آج شاہویز کو اپنا آپ سونپنا ہے، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اس کی گردن کو داغدار کرتا وہ اس کے گالوں پر آتا، اسے فرنٹ گردن سے نرمی سے پکڑے اس پر جھکا تھا۔ وہ اتنی شدت سے جھکا کہ شنایا مدہوش ہوتی اس لمس پہ تڑپ گئی۔ اسے بستر پر نرمی سے دھکا دیتے شاہویز نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ آج تو کچھ شنایا اس کی من پسند، اس کی چاہت، اس کا جنون بننے اس کے پاس آئی تھی تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا، اس کے اوپر آتے اس کے کمر بند کو چھوتا، وہ اس کے قریب اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ وہ دیوانہ ہوا تھا۔ اس کی پہلی چین کو دیکھتا اس کو موتیوں جیسا نرم نازک بدن شاہویز کو بری طرح اپنی طرف اپیل کر رہا تھا۔ وہ لبوں سے چھوتے اوپر ہوتے اس کی دھڑکنوں پر جھکا کہ شنایا نے مدہوش ہوتے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا اور پھر اس کی کمر پہ دباؤ ڈالتے اسے اپنے سینے سے مس کرنے لگی۔ اچانک سے شاہویز کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ یہ اس کی شنایا نہیں تھی۔ وہ ذرا سا اوپر ہوا تو شنایا کو ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوش کھوتے دیکھ وہ الجھا۔ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا پیچھے ہٹا تو شنایا تڑپ اٹھی۔ پلیز شاہویز پاس آئیں اور مجھ پہ چھا جائیں۔ آج آپ کی شنایا آپ بالکل بھی نہیں روکیں گے، وہ مدہوشی میں بولے جا رہی تھی اور پھر سے شاہویز کے قریب ہوتی اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی، جسے شاہویز نے غصے سے پرے جھٹکا۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ ضرور اس نے کوئی نشہ آور ڈوز لی تھی، پر کہاں سے کیسے؟ وہ لب بھینچے اس کا مدہوشی سے اپنے سینے پر لبوں سے نرم بوسہ لیتا دیکھ خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ ہرگز بھی اس کی مدہوشی میں اس سے اپنا حق نہیں لینا چاہتا تھا۔ سب باتوں کو سوچتے اس کا دماغ غصے سے بھر گیا۔ جھٹکے سے اسے بستر پر پٹکا۔ میرے قریب آنے کے لیے تم یہ سب کرو گی؟ نشہ آور چیزیں یوز کرو گی؟ I will never forgive you۔ وہ پلٹ گیا۔ میں نے کچھ بھی یوز نہیں کیا شاہویز۔ وہ روتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ شاہویز کو اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے سوچا تھا، یوز بھی کرنا تھا، پر نہیں کیا، کیونکہ میں سچے جذبوں کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، ہمارا رشتہ ہوش و حواس میں شروع کرنا چاہتی تھی، پر آپ شاید اب مجھ میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے، آپ کو میرے جسم کی اب طلب نہیں رہی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ شاہویز کو اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا۔ ہوش میں ہی ہوں، کوئی نشے میں نہیں، دیکھ لیں کورٹ سے مجھے۔ وہ سر جھٹکتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ اس ساڑی میں مجھے دیکھ کر ہوش کھو دیں گے، اب نہ گم ہوئے ان کے ہوش مجھے دیکھ کر۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتی اپنے گلے سے لاکٹ اور کانوں میں پہنے آویزے اتار کر ڈریسنگ پر پھینک گئی۔ شاہویز نے اس کا قیامت خیز حسن دیکھتے ایک پل میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھینچتے اسے اپنے سینے سے زور سے لگایا کہ اس کی دھڑکنوں میں بے پناہ ارتعاش پیدا ہوا۔ اب اتنا قریب آ کے دور نہیں جانے دوں گا۔ آج تو سارے پردے گریں گے اور تم چاہ کے بھی مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ آج تم میری جنون طلب دیکھو گی اور اس ساڑی کو پہننے پر ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ وہ اسے ایک آنکھ بند کرتے اس کی ساڑی کا پلو گرا گیا۔ شنایا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ شاہویز بہت شدت سے اس پر جھکا، اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ اس کا جنون، اس کی شدت، اس کی طلب قہر بن کے شنایا پر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ دل بڑا کیے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی لرزنے لگی۔ لائٹ آف کرتے کمفرٹر میں دونوں ہی غروب ہوتے پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ ڈر تو نہیں لگ رہا میری جان کو؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پوچھنے لگا۔ اس کی ننھی سی جان کہاں پھنس گئی؟ وہ تو بس یہی سوچے جا رہی تھی، پر شاہویز نے اپنے نرم گم غربت میں سب بھلا دیا۔ وہ اسے اپنا بناتے اس کے سارے درد دور کر گیا۔ اسے کہتے ہیں جو جس کا ہوتا ہے اس سے مل ہی جاتا ہے۔ آج زاہدہ خالہ اپنی بیٹی شازیہ کے ہمراہ انصاری ہاؤس سے جا چکی تھیں۔ شنایا کا چمکتا دمکتا روپ دیکھ وہ سمجھ گئی تھی شاہویز اب ہاتھ نہیں آنے والا۔ اسے اپنی بیوی کا نشہ چڑھ گیا تھا، اور کم سن و خیز حسن کا نشہ بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے زاہدہ خالہ شازی کو سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ واپس گھر لے گئی۔ خس کم جہاں پاک۔ عشل کی بات پہ شنایا کہکا لگاتے ہنسی، جبکہ سیڑھیاں اترتا شاہویز اس کی ہنسی کی جھنکار میں کھوسا گیا۔ کتنا مس کیا تھا اس نے اس ہنسی کو۔ ناشتہ کرتے وہ راشدہ بیگم کی دعائیں لیتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا کہ شنایا بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ بھی پلٹ کے گہری استحقاق بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی کیز؟ وہ کیز سامنے لہراتے بولی تو وہ اس کی جانب پلٹا۔ اس کے ہاتھ سے کیز لیتے اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے اس کے لبوں سے آج اپنے ہونٹ پہ مس کر گیا۔
شنایا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آج رات پھر ساڑی پہننا، وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتے بولا۔ نام میری توبہ، جو آپ نے حال کرنا میرا۔ وہ بے ساختگی سے بول گئی جبکہ شاہویز کا زندگی سے بھرپور کہا گونجا۔